Okay. So here we are again. Last time we were doing some multiple choice question. I was on ninth one. In case of projectile, what is the angle between instantaneous velocity and acceleration at the highest point? ये मैं कर रहा था, इतने में टाइम खत्म हो गया था. At the highest point, anybody can tell me at the highest point which component of velocity becomes zero? जैसे जिससे ऊपर जाता है, what happens to the vertical? Decreases, and at highest point it becomes zero. But which component? Horizontal, vertical, both, or only vertical? Sir, only vertical. Only vertical. Horizontal velocity always remains constant. It is horizontal. Everywhere, u cos theta, सब जगह u cos theta होगा. What about acceleration? Is there any acceleration on the particle? खाली बताओ. Yes, sir. It is g. Remains upward. ऊपर फेंका है तो ऊपर फेंका है ना, तो g is negative. G is negative. हमने ऊपर फेंका था. So this is direction of acceleration, which is directed downward. This is direction of velocity. Because at highest point, vertical component of velocity is zero. Vertical component of velocity equal to zero. So therefore, what is the angle? Angle between velocity and acceleration at highest point will be how much? Tell me. What is the angle between velocity and acceleration? बताओ ना, अभी तो खत्म है आंसर. What is the angle? Yeah. Is it 90? 90 degrees. 90 degrees. अरे यार, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो what is the angle? It has to be 90 degrees, ना? Velocity is horizontal because horizontal component will never change, and acceleration is vertically downward. G 9.8 meter per second square. क्योंकि vertical component velocity का होता नहीं at highest point, it becomes zero. एक मिनट समझे या नहीं? Yes, sir. So yes, therefore, the answer is 90 degrees. Therefore, answer is 90 degrees. And therefore, C is the answer. C is the answer. Come to 10th. इसको मिटा दूं? ऐसे सब कॉपी कर रहे हैं आपको समझने के लिए. नेक्स्ट मुझे पढ़ेगा जीतू, पढ़ के बताओ. जीतू. A player picks up the ball at an angle theta with the horizontal. The horizontal range is maximum when theta is equal. ये आना चाहिए. Oral. The 45. 45. Therefore, Baba is the answer. Okay. Then come to number 11. Read करो. The greatest height to which a man can throw a stone is h. The greatest distance to which can throw it with. Okay. Greatest height to which a man can throw a stone is h. Greatest height, यानी h max equal to h. Then what is the greatest distance? What is the greatest distance यहाँ पे क्या होगा? Anybody can tell me? What is the meaning of greatest distance? What's the mean? Range. 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 Range max equal to what? They are asking range max. Tell me range max. Word max आया यानी what must be theta? Range is maximum में theta 45 कितना? degrees. 45 degrees. Lovely 45 answer. degrees. It is 45 degrees. अब h का फॉर्मूला मुझे मास बताओ. मास h का फॉर्मूला क्या? h max का फॉर्मूला u square sin square theta upon 2g. Lovely answer. H max equal to u square sin square theta upon 2g. But theta तो मालूम है. theta कितना है? क्योंकि रेंज मैक्सिमम कर रहा है तो theta must be 45 degrees. That means u square sin square 45 upon 2g. Alright, that is equal to
और h max is h, वो लोग ने h बोला है. Therefore u square. What is sin 45? What is sin 45? मुझे बताओ कोई. 1/√2. 1/√2. Sin square 45 is 1/2. And this is 2g. That means this will become u square by 4g. और therefore u square by g कितना होगा? 4h. ये h है. Therefore u square by g will be 4h. Come to r max. What is r max का formula? डायरेक्ट आंसर भी चलेगा. अब पहले r का फॉर्मूला बोलो. वेट r का फॉर्मूला. भरगेश r का फॉर्मूला बोल. रेंज का फॉर्मूला. Yes, sir. Our range is equal to u square into sin 2 theta upon g. वेरी गुड आंसर. बहुत अच्छा आंसर. Therefore r max का आंसर क्या होगा? When theta is 45, 90 sin 90 will become 1. U square by g. कुछ गड़बड़ किया हमने. There is something wrong here. U square sin square theta upon 2g. U square sin square. Anything wrong we have done? Something wrong we have done or what? Can you tell me? Have I done something wrong? भाई 4h है मेरी ख्याल से आंसर. उसमें आंसर ही नहीं दिया 4h. उसमें 2h आंसर दिया है. जरा देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने. जस्ट चेक. Anything wrong? You think it's right? Afif. Afif. Sir, sir, it looks right only. No, sir. Yes, sir, it's right only. That is what I am. उसमें आंसर 2h दिया है. फोर एच आता है मेरी ख्याल से. चलो ठीक है, देख लेंगे हम लोग. इफ देयर इज एनी एरर जस्ट पॉइंट आउट. ना प्लीज पॉइंट आउट. एक बार वापस बताऊं. देखो, they are saying a greatest height which ball can be thrown is h. तो लोग बोलते हैं that what must be maximum range. So h max is u square sin square theta, but range is maximum means you must have thrown at an angle of 45 degrees. So u square sin square 45 upon 2g. So u square sin 45 is 1/√2. So sin square 1/2 upon 2g. So u square by 4g. So u square by g is 4h. R max is u square by g. U square by g is 4h. So 4h should be the answer. Therefore 2h को 4h कर दो मेरे ख्याल से. 11th का b make it 4h. Now let us do 12th. मिटाओ इसको. मिटा दूं. Yes. Okay. Read. Jitu, read करो. Two balls are projected at an angle theta and 90 degree minus theta to the horizontal with the same speed. The ratio of their maximum vertical height is h max 1 upon h max 2. What is h max का फॉर्मूला? मुझे बताएगा. ओम, h max का फॉर्मूला बोल. ओम.
ओम आई थिंक भाग गया है क्या? विधि एच मैक्स फॉर्मूला Yes, sir. Sir, h is equals to u square sin square theta upon 2g. therefore h max 1 will be u square equation number 1. What about h max 2? u square sin square 90 minus theta. अच्छा मुझे बताओ, आपने ये सुना 10th में व्हाट इज sin 90 minus theta? ये किया है ना आपने? इक्वल टू व्हाट? sin 90 minus theta की? हाँ, no. Anyone of you? नहीं किया है? 10th में नहीं था ये? Just tell me yes or no. Yes or no? Yes or no? 10th में था कि नहीं? खाली ना बोलो ना, हाँ या ना. Sir, no. था कौन बोला? हाँ? Sin 90 minus theta is cos theta and cos 90 minus theta is sin theta. रिजल्ट लिख के रखोगे टॉप पे. ये हमको ये सिखाएंगे sir, आपको ये था. ट्रिगो में. ये था ना? Yes, sir. था तो फिर तुम, मेरे को पता है था, पहले हुआ करता था. मेरे को लगा न्यू सिलेबस में निकाल दिया. अफीफ नहीं था ये? Sir, Afif? only the identities and the inverse thing was there, sir. I think this was not there. What about CBSE Vidhi? Vidhi, was it there? Sir, in my school ICSE, this only these two were there. Only these two? ये were there or yes or no? ये दोनों? Yes, sir. हाँ तो फिर हो गया ना. That is equal to u square cos square theta upon 2g. Equation to divide 1 by 2. So h max 1, h max 2 will be equal to this upon this. U square sin square theta upon 2g divided by u square cos square theta upon 2g. So u square by 2g will get cancelled. That is equal to sin square theta upon cos square theta, and that is equal to tan square theta. And therefore tan square theta should be the answer. Tan square theta is to 1. यानी कि डब्बा is the answer. डब्बा D. इसका एक और मेथड बताता हूँ. You know, this method में हम लोग u square by 2g लिखते जाते बिना बहुत परेशान होते. उसको अवॉइड करने का तरीका बताता हूँ. This is a longer method. This is a longer method. You should not follow this longer method. पहले कॉपी कर लो इसको. इसको कॉपी कर लिया आपने कॉपी, तो मैं आगे अल्टरनेटिव मेथड पे जाता हूँ. कॉपी किया क्या? Yes, sir. Okay. मिटा दूं? Yes. मिटा दूं? Okay, alternative method सुनो. This method you should follow. Always follow this other method which है constant जो होगा ना उसको भगा देने का, जो चेंज ही नहीं हो रहा है उसको भगा देने का इक्वेशन से. h max का फॉर्मूला क्या? u square sin square theta upon 2g. Tell me h max is proportional to what? क्या u चेंज हो रहा है क्या? फर्स्ट और सेकंड में क्या u चेंज हो रहा है? u चेंज नहीं हो रहा है, उसी वेलोसिटी से फेंक रहा है वो. एक बार थीटा एक बार 90 माइनस थीटा. u is not changing. क्या g चेंज होता है? Is doing on the earth No, sir. only. So g will not change, 2 will not change. तो क्या लिखो h max proportional to anybody? Sir, sin square theta. That is right. Right? Therefore ये मैंने बताया था a proportional to b यानी a1 by a2 equal to b1 by b2. And a inversely proportional to b. तो a1 by a2 will be b2 by b1. ये बताया था मैंने पहले. ऐसा बताया था. इनवर्सली होगा तो सफिक्स विल गेट इंटरचेंज और डायरेक्टली होगा तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2. तो टेल मी h max 1 upon h max 2
कैसे will be equal to sin square theta 1 upon sin square theta 2. But theta 1 is what? But theta 1 equal to theta. And what is theta 2 equal to? Okay, मैं भूल गया. Theta 2 क्या होगा? 90 degree minus theta. That's lovely answer by G2. And therefore H1 upon H2 max दोनों एक ही बार में लिख देते हैं. Will be equal to sin square theta upon sin square 90 minus theta. That is equal to sin square theta upon cos square theta. Tan square theta. Dabba is the answer. This method you should follow always. This is a much better method. वो constant बार बार लिखते जाते हैं, बाद में cancel करते हैं उसको, तो लिखने का इतना टाइम, फिर cancel करने का टाइम, और complicated दिखाई देता है उसमें. हो गया? Yes, sir. ओके, इसके बाद हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो. बिंदास क्वेश्चन पूछने का, मेरे को अटका देने का. 14 रीड करो. जीतू. The maximum height attained by projectile is found to be equal to 0.433 of horizontal range. The angle of projection of this projectile 0.433 of horizontal range. तो वो लोग क्या पूछते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होगा? अब मुझे ओम ने बोला ही नहीं आज सुबह से एक बार भी. ओम एच दे, एच मैक्स. H max equals to u square sin square theta upon 2g. अरे बिफोर गोइंग फर्दर एक बात बताना भूल गया मैं आपको. ये आपको आएगा, लेकिन अच्छा है मैं पहले से बता रहा हूँ. एक था फॉर्मूला साइन 2 थीटा. सर कराएंगे ये फॉर्मूला, लर्न बाय करो, बहुत जगह आएगा फिजिक्स में, मैथ्स में, बार बार लगातार थ्रू आउट 2 साल तक परेशान करेगा ये फॉर्मूला. sin 2 theta is 2 times sin theta cos theta. Is learn by heart. फिजिक्स में ना कराते कराते मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ती है, और पर्टिकुलरली ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूले इधर उधर से मुझे यूज करने पड़ते हैं. फॉर्चुनेटली माय मैथ्स इज गुड इनफ, सो आई कैन ऑलवेज. ये फॉर्मूला लिखो, कहीं पे टॉप पे लिखो, और लर्न बाय हार्ट. जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है उनको भी ये करना पड़ेगा फॉर्मूला. आप ये नहीं बोल सकते मैंने मैथ्स नहीं लिया, आई डोंट नो. यू हैव टू डू दिस. यू विल फाइंड सो मेनी नीट प्रॉब्लम्स आर कमिंग बेस्ड ऑन मैथ्स. तो इसलिए आपको मैथ्स का जहां जहां जरूरत है वो तुम लोग लर्न बाय हार्ट करना. मेरे को बोलना नहीं सर मैथ्स हमने नहीं लिया. विधि. Yes, sir. What is sin 2 theta formula? What is sin 2 theta equal to? 2 sin theta cos theta. Burgess, sin 2 theta equal to what? Sir, 2 sin theta cos theta. That's right. अच्छा, R का फॉर्मूला क्या है? U square. Now U square cancel. G cancel. And therefore sin square theta upon 2 is 2 times sin theta cos theta. Alright. This 2 gets 2 और multiply. क्या होगा? This 2 gets cancel और multiply होगा. Multiply. Okay. Therefore ये sin theta तो इधर आएगा, sin theta. Sin of theta equal to 4 times cos of theta. Therefore tan theta equal to 4. बट वो लोग क्या है? हाँ मैंने लिखा ही नहीं. Equal to 0.433. अच्छा मुझे एक बात बता रहा हूँ, 1060 ये एसएससी में था कि नहीं, 10th में था कि नहीं 1060 का वैल्यू?
अरे एसएससी में था कि नहीं 1060? हाँ सर था। यस सर क्या था। था वैल्यू, क्या था वैल्यू, क्या थी वैल्यू? सर 1/√3 सर 1 √3 1060 √3। तुम लोग प्लीज वो टेबल बोलो मत, कोई 1 बोल रहा है, कोई 1/√3 बोल रहा है। आई डोंट लाइक दिस, ये अब आना चाहिए ये सब। 1030 इज 1/√3। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आंसर क्या आएगा ना, इसका आंसर आएगा 1.732। 4 3 को 12, तो ऐसे करते करते हैं ना, ये आंसर करोगे तो 1.7। देखो थीटा कितना होगा बताओ, कितना लिखो थीटा? Sir, 60 degrees. Also 1060. Therefore, theta equal to 60 degrees. देखो एक बार फिर से वो लोग बोलते हैं h max is 0.433 r. That means u square sin square theta upon 2g is 0.433 times r का फॉर्मूला u square sin 2 theta upon g. u square g it cancel. So for sin square theta upon 2 equal to sin 2 theta equal to sin theta cos theta equal to 0.433. So this sin theta और ये स्क्वायर, तो दिस एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ sin थीटा बचता है, 2 इधर से यहाँ गया तो 4 cos थीटा into 0.433. तो दैट मींस ये cos थीटा नीचे ले आया मैं, तो sin थीटा upon cos थीटा is tan थीटा is 4 into 0.433. tan थीटा is 1.732. Also tan 60 is 1.732. Therefore what is theta? 60 degrees. समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपको एक एक चीज अंडरस्टैंड करना, यू कैन नॉट लर्न बाय हार्ट, यू कैन नॉट लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट इज इम्पॉसिबल, लर्न बाय हार्टिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, इसके बाद 14 के बाद लेट्स डू 15। देखो एक बात ध्यान रखना है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है मालूम है? एनीबॉडी थ्रोन इन द एटमॉस्फेयर और फ्री टू फॉल, खाली ऐसे छोड़ देने का, अपने आप गिरती रहेगी, या ऐसे ऐसे जोर से मार के छोड़ोगे तो भी, जैसे यू नो फ्रॉम द टॉप ऐसा थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो ऐसे ऐसे, तो इट इज अ प्रोजेक्टाइल। ऑलराइट, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, पेट्रोल के ऊपर नहीं चलना चाहिए, पेट्रोल डीजल इसके ऊपर कुछ हवा में चल रहा है तो दैट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। तो जरा रीड करो नंबर 15। An object thrown from a moving bus is an example of. देखो किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते तो क्या सर्कुलर मोशन करता है क्या? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नो। रेक्टिलिनियर मोशन सीधा जाता है? नो। प्रोजेक्टाइल मोशन? यस यस, इट डेफिनेटली डज प्रोजेक्टाइल मोशन। और मोशन इन 1 डायमेंशन होता है, वैसे हवा में गिरता है नीचे, तो दैट मींस इट इज इन 2 डायमेंशन। एंड देयरफॉर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कभी भी बॉडी को किसी को फेंक दिया तो इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सी, 15 का आंसर इज सी। नाउ कम टू 16। 16 बहुत इजी है, मैं करूंगा ही नहीं, तुम लोग करोगे और मुझे आंसर बताओगे। 16 रीड करो जीतू। A projectile is thrown with an initial velocity of 50 meter per second. The maximum horizontal distance which this projectile can travel. आई डोंट नो, जरा ट्राई करो, प्लीज ट्राई। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मेरे को h max ना, जरा करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। करो, आई वांट टू सी हु इज द बेस्ट हु गिव्स मी द आंसर। क्या आंसर आया?
क्या आंसर आया? विधि, व्हाट इज द आंसर? विधि, ओम, माज, क्या है आंसर? मोक्षदा, मोक्षदा। नाउ यू मस्ट बी कंफर्टेबल, तो जरा आंसर बताओ क्या है? कोई नहीं कर रहा है। देखो एक बात सुनो मेरी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। पूरे 2 साल आपको ध्यान रखनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, सुनो हाँ, ध्यान से सुनो ये बात, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉप राइटिंग, मेरी बात सुनो ध्यान से। सपोज मैं बैटिंग कर रहा हूँ, और तुम लोग को बोलता हूँ देखो देखो देखो, राइट, एंड यू वांट टू बिकम गुड क्रिकेटर। मैं हर बार बैटिंग कर करके डिफरेंट स्ट्रोक्स खेलता हूँ, तुम लोग देखते हो यार मजा आ गया, वाओ, कैन यू बिकम गुड क्रिकेटर? देख देख के सर आप करते जाओ, सर आप करते जाओ, मतलब मैं बैटिंग करते जाऊं, तुम लोग देखते जाओ। कैन यू बिकम गुड क्रिकेटर? यस, नो, यू कैन नॉट। आप गुड क्रिकेटर कब बनोगे? Sir, is u cos theta 50 meter per second? So can we? एक मिनट, मैं चलना इस पे आ जाना बेटा। व्हेन यू कैन बिकम गुड क्रिकेटर अफीफ? व्हेन यू Practice. व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इधर तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हर बार बैटिंग कर रहा हूँ और शॉट मार रहा हूँ, कभी 6 मार दो, कभी 4, कभी इधर कभी उधर। इससे तुम लोग कभी नहीं बनोगे, तुम लोग खाली देख रहे हो कि कैसे। तुम लोग गुड क्रिकेटर, गुड स्टूडेंट कब बनोगे? जब एक्चुअली यू विल स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। यू मे नॉट गेट, हो सकता है नहीं आएगा, तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू हेल्प यू। लेकिन जब तक तुम बैट हाथ में लोगे नहीं, खाली आउट होने से डरते रहोगे कि मैं आउट हो जाऊंगा इसलिए खेलूंगा ही नहीं, तो यू विल नेवर बिकम गुड क्रिकेटर। इसीलिए आपको पेन पेपर लेके स्टार्ट करना है लिखना। जब लिखोगे तो मिस्टेक भी करोगे, जब खेलोगे तो आउट भी होगे, तो आउट होने के बाद यू बिकम गुड प्लेयर कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, अदरवाइज आउट हो जाता हूँ। ऑल दैट विल कम ओनली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको कितना इजी था प्रॉब्लम, कितना इजी प्रॉब्लम था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, maximum horizontal distance. What is the meaning of maximum horizontal distance? खाली ये बोलो, anyone? Sir, range. Implies what? Range is maximum. Maximum horizontal distance equal to r max. Implies theta कितना? What is theta given by them? 45 degrees. 45 degrees. R max का फॉर्मूला क्या? आप तो डायरेक्टली लिख सकते हो। What is R max का फॉर्मूला? U square upon G. So u square upon G. U square upon G. U कितना दिया? 50. G को 10 लेते हैं, समझो 10 लेते हैं, फिर हम लोग 9.8 होगा तो आंसर थोड़ा बढ़ेगा। तो 50 का स्क्वायर कितना? 2500 अपॉन 10, मतलब 250 मीटर। नाउ अगर इसको 9.8 लेते हम लोग तो टेल मी आंसर 250 से ज्यादा आता कि कम आता? अगर इसको 10 के बदले ज्यादा आता तो ग्रेटर देन 250 वाला आंसर कौन सा है वहां पे? ग्रेटर देन 255, तो डब्बा इज द आंसर। कितना इजी था, कितना इजी प्रॉब्लम था। तुम लोग करना नहीं चाहते हो, खाली बोलते रहोगे ना कि सर आप करो, हम लोग कॉपी मारने में एक्सपर्ट है, आप करो, हम लोग समझेंगे। सर मेरा आंसर आ गया था। तो आ गया तो बोलने का ना। सर मेरा भी 250 आ गया था। तो मैंने म्यूट कर दिया था तुमको क्या? कि मैंने म्यूट सर कर दिया पर कि वो तुमको नहीं बोलने दूंगा? बोलो बिंदास बोलो, सर रुको मेरा आंसर 250 आया है, और लेकिन इसमें 250 दिया नहीं है सर, 255 दिया। कभी भी आंसर आया ना आपका तो सीईटी में नियरेस्ट आंसर पे जाओ, नियरेस्ट जो आंसर होगा ना दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे 255 है ना, तो 255 नहीं है तो 250, और 250 अगर होता है तो 250 मार देते आंसर, है ही नहीं 250, तो उसका नियरेस्ट आंसर ले लो। फॉर एग्जाम्पल 64 मीटर इज नॉट पॉसिबल, 128 5 मीटर खाली बोल रहा है तो 255 मीटर ही होगा, 250 अगर आंसर आ रहा है तो। हाँ, अब अफीफ क्या बोल रहे थे आप बेटा? यू कॉस थीटा का क्या लफड़ा था, बोलो। No, sir, nothing, sir. अंडरस्टूड, बट यू अंडरस्टूड? Yes, क्या sir. होगा मालूम है? सुनो सुनो, सबसे बेस्ट लर्निंग क्या होती है?
You try on your own. You are not getting. फिर मेरे को बोलते सर मेरे को आ नहीं रहा है, तो मैं बताऊंगा ये ऐसा में, तो it will become very clear to you, क्योंकि तुमने बहुत अटेम्प्ट किया था उसके पीछे और नहीं आया था आपको. और फिर जब मेथड समझ में आता है ना, तो बोलते हैं अरे अपने मिस्टेक क्या होती थी, ये मिस्टेक होती थी, आई वॉज बैड इन डूइंग दिस प्रॉब्लम. द मोमेंट यू स्टार्ट डेवलपिंग दिस कि मैं कहाँ गलत हूँ, you will become a better student. Slowly you will become master of everything. But you can become master only and only if you take pen paper in hand. Just by observing cricket matches on TV or on stadium or watching somebody play, you will never become good cricketer. Similarly, without attempt you can. अभी देखो अफीफ को ये प्रॉब्लम ज्यादा क्लियर होगा. अफीफ Yes, sir. Afif, you tried, you didn't get, but now you understood much better ना कि क्या कर रहा था मेरे को. Yes, sir. हाँ, तो this is what I want. ऐसा गलती करना, mistake होना is not a crime, but then not doing is a crime. Not trying, not doing, not बोलना नहीं सर आप करो, हम लोग खाली देखने के लिए आए इधर, आप करते जाओ, तो मेरा CET will become कौन stronger and stronger. Okay, come to 18. 18 बोल पढ़ो जरा. Projectile projected with certain angle reaches ground. ये तो बहुत इजी है. देखो ये हमेशा ध्यान ही रखो, ये अगर U से फेंका ना तो यहाँ पे जो गिरता है ना तो V equal to U. Whatever velocity with which it is thrown, the same at the same level होना चाहिए, same level, तो ही आंसर पॉसिबल है. Horizontal component remains same and vertical component while falling down will become same. तो ये आंसर क्या होगा बताओ. Same angle. Same angle. ये एंगल थीटा होगा ना यहाँ पे, तो this angle also will be theta. But provided it is at the same level. Huh? Okay. Next. Next 19 तो नहीं आता है. 18 के बाद 20 करो. Projectile projected with certain velocity reaches ground with the magnitude. बोलो अभी सेम मैंने आंसर दे दिया पहले. with the Sir, same velocity. same velocity. हाँ, with the same velocity. अभी यार टाइटल लिखो relative velocity. I have to explain that part also. Relative velocity. Relative velocity. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली जब मैं छोटा बच्चा था ना, कभी ट्रेन में जाते थे हम लोग ना, तो आई वाज स्मॉल चाइल्ड, लेट अस से 5 10 6 7 8 10 इयर्स ओल्ड. मैं ट्रेन से जा रहा होता ना, तो सामने से भी ट्रेन आती है. यू एग्री? अदर डायरेक्शन से ट्रेन आती है ना, दूसरी पटरी पे, अदर ट्रैक. तो जब मेरी ट्रेन जाती तो मेरे को लगता था बाजू वाला ड्राइवर कितना फास्ट चला रहा है, इतना फास्ट ऐसे करके चली जाती थी ट्रेन. तो मेरे को लगता था अपना ड्राइवर साला स्लो है, बहुत स्लो है. ऐसा कितने लोग को लगता था ऐसा कि बाजू वाला ड्राइवर फास्ट स्पीड से जाता है? ऐसा हो सोचते ही नहीं तुम लोग? No, sir, और because लॉकडाउन का पहले का याद नहीं है सर क्या? यस टेल मी. sir, since we're moving in opposite direction, so it looks to be fast, but he is not that fast. इट्स नॉट दैट फास्ट. बट वो तो अपने अंडरस्टैंडिंग बाद में आती है ना. पहले बचपन में क्या लगता था अपने को कि बाजू वाला ड्राइवर, ऐसा नहीं होता था क्या? मेरे को तो होता था, किसी को नहीं होता था ऐसा कि तुम लोग सोचते नहीं थे जानते अपने को क्या करने का है? तुम लोग सोचते थे या नहीं कि बाजू वाला ड्राइवर फास्ट जा रहा है? क्या जाने, तो कोई बोलता ही नहीं है यार. चलो ओके, नाउ मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज दिस इज ट्रेन A. I am not going into theory of relative velocity. I will explain you how to tackle. This is train B. Train is going to the right at 100 km per hour. And train B is also going to the right, let us say at 60 km per hour.
ऑलराइट, आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 आवर. What is the distance between them after 1 hour? It is an oral question. Orally आंसर दे देंगे हम लोग. Orally आंसर दे देंगे, इतना इजी है. बोलने का सर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ाते हो आप? हाँ, that is right. Oral. You are right, Afif. What is the distance between them after 1 hour? तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैं पहले एक्चुअली लिखता जाता हूँ तो concept will become clear. What is the distance between A and B after 1 hour? पहले विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी में करता हूं, ओरली पहला, विदाउट कॉन्सेप्ट. टेल मी 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर गया होगा? 100 किलोमीटर. ए मस्ट हैव ट्रैवल्ड टू द राइट 100 किलोमीटर. यहाँ पे पहुंचा होगा. ये सपोज A1 पे, ये A2 आफ्टर 1 आवर. और व्हाट अबाउट बी? बी 1 घंटे में कितना गया होगा? 60. B2. Therefore, can I say A is ahead of B by कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर आफ्टर 1 आवर. ये आंसर हो गया. अब आप बोलेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं. अब सुनो ध्यान से. पहले हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए. अच्छा हाँ, एक बात बताओ ना. ए के अंदर सपोज अफीफ बैठा है और बी के अंदर भरगेश बैठा है. ए के अंदर अफीफ, बी के अंदर भरगेश. मुझे बताओ भरगेश को क्या लगेगा? ए भरगेश को ए की स्पीड क्या लगेगी? 100 किलोमीटर पर आवर लगेगी या कितनी लगेगी? भरगेश को ए की स्पीड क्या लगेगी? 100 किलोमीटर पर आवर लगेगी क्या? सपोज भरगेश रेस्ट पे होता, यहाँ पे भरगेश रेस्ट पे 0 किलोमीटर पर आवर रास्ते पे, तो भरगेश को एक ही स्पीड क्या लगेगी? 100 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अगर भरगेश खुद भी भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से उसी डायरेक्शन में, तो उसको उसकी स्पीड लगेगी 40 किलोमीटर पर आवर. ऐसे जा रहा है, थोड़ा फास्ट जा रहा है अपने से, 40 किलोमीटर पर आवर. अफीफ को बी की स्पीड क्या लगेगी? अफीफ आपको 40 किलोमीटर और स्लोअर. 40 किलोमीटर पर आवर पीछे जा रही है. ऐसा लगेगा 40 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रही है वो. इट इज नॉट गोइंग, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे जा रहा है, तो उसको लगेगा 40 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रही है. तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो मेक बी टू कम एट रेस्ट. मेक बी टू कम टू रेस्ट. ऐसा कर दो कि बी को रेस्ट पे लाना है. बी को रेस्ट पे लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? बी की इधर रिवर्स वेलोसिटी डालेंगे 60 की. ये ए 100, बी को रेस्ट पे लाना है तो बी 60 पे जा रहा था, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर रिवर्स कर दो. तो ये 60 वहां पे भी ऐड करो. नाउ बी विल बिकम स्टैंड स्टिल एट दैट पॉइंट थियोरेटिकली, एंड ए बी का वेलोसिटी हो जाएगा 0 और ए का वेलोसिटी क्या होगा बताओ? ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को रेस्ट पे लाओ. ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये 100 है और ये 60 है, तो 40. तो अब मुझे बताओ इन 1 आवर ए विल गो हाउ मच? बी तो उधर का उधर पड़ा हुआ है. ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 आवर में? Therefore, A will cover 40 kilometer and B will be at rest. And therefore, A is ahead of B by 40 kilometers after 1 hour.